Good morning, everyone. Okay, so I hope yesterday I had given you one question for solving. You must have solved, and I will share the solution soon. Okay, so let's do one thing. We can solve that question. Is somebody who has solved this question? Please share the solution so that I can save time. I can go through the solution and rectify if needed or confirm whether it's correct or not. सो ग्रुप में या मुझे जिसने ये सॉल्व किया है प्लीज शेयर इट्स प्रॉपर फोटो. So we'll discuss this and then we will discuss another concept which is endorsement of bill. किसी का मुझे फोटो नहीं मिला है, किसी ने सॉल्व किया है या नहीं? हेलो. अच्छा, कोई है जिसने ये सॉल्व किया है? कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है फ्रॉम योर साइड. किसी ने नहीं किया है? अक्षत, अनुज, हर्ष, हीर, did you solve the question? Please mention yes या no. हर्ष, आपने सॉल्व किया है क्वेश्चन? ओके, ये ऐसा क्यों कर रहे हो? व्हाई आर यू नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चन? फिर आप बोलोगे कि सर अकाउंट्स डिफिकल्ट है. एक्चुअली अकाउंट्स डिफिकल्ट नहीं है, आप ही क्या है उसको इग्नोर करते हो. तो कोई भी नहीं है जिसने ये सॉल्व किया है? यस मनमीत, आपने सॉल्व किया है? तो प्लीज शेयर द सॉल्यूशन. कोई तो होना चाहिए. देखो, ये सब आप जो कर रहे हो वो बहुत ही अनएक्सेप्टेबल है. व्हेन कंसेप्ट इज प्रॉपरली टॉट, याद रखिए, व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग न्यू आपको रिवाइज करना चाहिए, तभी आपके माइंड में जाएगा. ओके, अदरवाइज इट विल बिकम डिफिकल्ट. आप ही चीजों को डिफिकल्ट बना देते हो, फिर कहते हो कि पेपर डिफिकल्ट था. पेपर कभी डिफिकल्ट नहीं होता, हमारी प्रिपरेशन कम होती है. ओके, चलिए, तो अभी यहाँ पर पूरा क्लास ही ऐसा है कि यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट ने ये सॉल्व नहीं किया है. ओके, जबकि ये सेशन भी रिकॉर्डेड आपसे शेयर किया गया था. तो पूरा इररिस्पॉन्सिबल क्लास है, किसी को तो करना चाहिए सॉल्व. तो आप क्या समझते हो? आप ये राइट डायरेक्शन में जा रहे हो? जस्ट थिंक अबाउट इट. जस्ट बाय अटेंडिंग समथिंग यू कैन नॉट बिकम मास्टर, यू नीड टू वर्क ऑन इट. ट्यूशन करके भी क्या है कि आप पूरे मार्क्स नहीं ला सकते, खुद की मेहनत करनी पड़ेगी. एंड दैट इज नॉट हैपनिंग. पूरे क्लास में से मुझे शायद किसी का फोटो नहीं मिला है जिसने ये सॉल्व किया हो. ओके, अनुज का मुझे फोटो मिला है. ओके, लावण्या हैज ऑल्सो सॉल्व. सो गुड. सो फॉर अदर्स, please understand, try to take the subject seriously.
So I hope you are able to see here. Can somebody read the question for me? Lavanya, can you please read the question? Because I think you are able to see the solution here, but question is not visible to you. Yes, sir. Hmm. Mr. Alok sold goods to Miss Priya of rupees 50,000 and received a bill of exchange payable after 3 months on 1st January 20. Okay, just a Alok minute. dis- So look here, Alok sold goods to Priya. Okay, so Alok will pass the entry Priya account debit to sales 50,000 and he received bill receivable to Priya. So first two entries are very easy. Anyone can pass these two entries. Similarly for Priya, she is purchasing, so purchase to Alok and Alok to bills payable. Please continue. Alok discounted the bill with bank at 6% per annum. Okay, now Alok discounted the bill at 6% per annum. So now here you need to calculate this discounting charges. तो 3000 का calculation नहीं है, but you can try one calculation. ये कैसे आया होगा? This must be 50,000 into 6 by 100 into 3 by 12. ओके, ग्रे स्टेस नहीं लोगे तो भी चलेगा, 3 दिन में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. तो प्लीज डू वन थिंग. चलिए एक काम करते हैं, आई विल ऑल्सो शो यू द कैलकुलेशन. आर यू एबल टू सी द स्क्रीन वेयर क्वेश्चन इज देयर? Okay, good. So now you will be able to see question as well as solution. Okay, so now discounting charges will be calculated like this: amount of bill into rate upon 100 into months upon 12. So these zeros will get cancelled. 3 fours are, and this is 500 into 3, 1500 by 2. Sorry, 5000. I think Lavanya, uh, you have got this amount as 3000. Let me again confirm. It's is the rate is 6% or 12%? 6%. And bill period is 3 months. Yes, sir. Okay, so 6 2s are 12. These zeros will get cancelled, and these two will get cancelled. Here there will be 250. So I'm getting the different amount. 250 into 3, I'm getting 750. Can you please recheck the calculation? Yes, sir. Yours is correct. Ha. And what about Anuj? How much discounting charges you had got? Yes, sir. 750? This much only, sir. Yes, sir. Okay. Ha. ठीक है, not an issue. So let me share the solution. Trying is very important. Okay. There might be some mistakes. That's fine. So look here. Anuj has calculated discount as 750. So it's very logical. 50,000 bill will go out, bill receivable credit. Discounting charges has 750. So balancing amount we will receive from the bank, which is 49,250. Good. No entry will be passed by the drovee when there is discounting. Okay, because it is a matter between drover and the bank. Then uh, let's look at the next transaction, what is given here. Now they have mentioned that
On the due date, bill was dishonored and the noting charges of 1000 are incurred. So when the bill was discounted and it is dishonored, then there will be one entry like this. So debtor account debit along with noting charges, 50,000 का बिल प्लस 1000 नोटिंग चार्जेस. तो प्रिया को डेबिट कर देगा आलोक 51,000 से टू बैंक, बैंक से 50,000 चले जाएंगे टू कैश 1000. ओके, नाउ देखो अल्टीमेटली कैश और बैंक इज सिनोनिमस, आप साथ में लिखोगे तो भी चलेगा. ओके, इट्स वन इन द सेम थिंग. देन for the same dishonor, Priya will pass the entry like this: bills payable debit, noting charges debit to Alok's account. Now the next situation, after the dishonor, Priya paid 40% of the due amount and accepted a new bill after 1 month together with interest at 12%. So Priya paid 40% नेक्स्ट of the पेज पे सर वो मेरा okay, आलोक वाला सर, नेक्स्ट पेज पे. okay. So I am not able to get the button to rotate it. How but I hope you are able to see this journal entry. So Alok को 40% पैसे मिल गए हैं and amount is calculated as 20,400. अब ये 20,400 कैसे आया होगा वो कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ. 50,000 बिल का अमाउंट प्लस 1,000 नोटिंग चार्जेस, 51,000 रिसीव करना था एंड उसका 40% मिल चुका है. ओके, सो 5,100 इंटू 4, सो 20,400 इज द अमाउंट जो रिसीव हो चुका है. एंड बाकी का जो 60% अमाउंट है, 51,000 का 60% is not received, इतना नहीं मिला है. So again in similar way you can do the calculation and it will become 30,600. So 20,400 is received. So ekdam easy hai, bills of exchange is very easy. Okay, you just need to just have a practice. So Keshore Bank to debtors account. सो आलोक ने पास की है एंट्री, उसको पैसे मिल गए 40%. सो केशवर बैंक टू प्रिया, ये बहुत ही इजी एंट्री है, पार्ट पेमेंट. देन अब न्यू बिल इंटरेस्ट के साथ बनाना है. ओके, एक सेपरेट एंट्री भी पास हो सकती थी इंटरेस्ट की, बट यहाँ पर एक कंबाइंड एंट्री पास की है. बट लेट मी शेयर विथ यू, अगर हम इंटरेस्ट की सेपरेट एंट्री पास करते हैं तो आलोक एक एंट्री पास करेगा, प्रिया से इंटरेस्ट वसूल करना है तो प्रिया का अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट का अकाउंट. ओके, एंड ये जो अमाउंट नहीं रिसीव हुआ है 30,600, इसके ऊपर कैलकुलेट होगा. एंड रेट अपॉन 100, लुक इनटू द क्वेश्चन. अब जो इंटरेस्ट लगेगा इट विल बी एट द रेट ऑफ 12% पर एनम. ओके, सो 30,600 जो नहीं मिला है उसके ऊपर 12%. एंड न्यू बिल का जो पीरियड है, देखो न्यू बिल इज फॉर 1 मंथ, सो 1 मंथ के लिए इंटरेस्ट चार्ज होगा. सो इनटू 1/12, so 12 and 12 will get cancelled, 0 and 0 will get cancelled. So you have got the amount of interest which is 306. So इंटरेस्ट के बाद अब न्यू बिल एक्सेप्ट होगा. एंड अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, न्यू बिल का अमाउंट क्या होना चाहिए? कैन समबडी टेल मी व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ न्यू बिल? विच अमाउंट प्लस विच अमाउंट?
Okay, Akshata, I was not able to hear you. But new bill amount will be addition of 2. देखो 30,600 रिसीव नहीं हुए हैं एंड इंटरेस्ट 306 भी रिसीव नहीं हुआ है, वो बिल के साथ ऐड करना है. सो व्हाट शुड बी द अमाउंट? 30906. 30906. परफेक्ट. अक्षत का आंसर करेक्ट है 30906. सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिल्स रिसीवेबल नया आएगा 30906 एंड प्रियास अकाउंट क्रेडिटेड 30,600. अब आप सोचोगे कि सर ये तो 30,600 अनुज ने लिखा है. नाउ व्हाट अनुज हैज डन, अनुज ने इन दोनों की कंबाइन एंट्री पास की है. ओके, व्हेन यू पास कंबाइन एंट्री तो क्या होगा? प्रिया डेबिट, प्रिया क्रेडिट. सो अल्टीमेटली प्रिया को क्रेडिट हो जाएगा 30,600. सो सेपरेट एंट्री भी पास कर सकते हो, कंबाइन भी कर सकते हो. आई विल अंडरस्टैंड कि आपने क्या किया है. So good, Anuj, and as well as Lavanya, as well as some other students, those who have tried. Also, uh, thanks to Manmit, he has also solved the question. थोड़ी सी मिस्टेक शायद इंटरेस्ट में है एंड में, सो शायद अभी क्लियर हो गया होगा. ओके, सो आई विल ऑल्सो शेयर the perfect solution with you, but I hope now you are able to understand the concept. So next final type we are going to discuss, this is called endorsement. Okay, now what is endorsement? Endorsement का मतलब ये है कि बिल के पीछे आप अगर किसी और पर्सन का नाम लिख दोगे और ये बिल उसको दे दोगे तो बिल बिकम्स पेएबल टू दैट पर्सन. एक एग्जांपल, लेट्स से फॉर एग्जांपल अनुज ने एक बिल बनाया है एंड अनुज हैज गिवन दैट बिल टू मी. आई एम द क्रेडिटर ऑफ अनुज. तो अनुज ने वो बिल साइन करके मुझे दिया है एंड आई वांट टू मेक पेमेंट टू, लेट्स से अनन्या. मुझे अनन्या को पेमेंट करना है. तो व्हाट आई विल डू, वो बिल के पीछे आई विल साइन एंड आई विल राइट द नेम ऑफ अनन्या. इसका मतलब है कि अब मैं ये बिल अनन्या को दूंगा तो अनन्या हैज राइट. ओके, बिल पर मेरा नाम है लेकिन बिल के पीछे आई हैव साइन. सो दिस साइनिंग in favor of other person is called endorsement. So I hope you are clear about this meaning. इसको simple words में मैं लिखाता हूँ. It is the transfer, please write down, it is the transfer of bills receivable by a holder of bill in favor of other person. ये अदर पर्सन की पोजीशन पेई की है. पेई इज द पर्सन जिसको पैसे मिलेंगे. ओके, नाउ यहां पर होल्डर ऑफ द बिल इज जनरली ड्रोवर होता है बट इट इज नॉट कंपल्सरी. ओके, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इस वे से एंडोर्स किया जाता है. इट इज डन by signing on the back side of a bill. So
by holder of the bill. So it is a process. So एंडोर्समेंट एकदम इजी है. बिल किसी और के नाम करना उसको कहते हैं एंडोर्समेंट. सो नाउ वी विल डिस्कस द जर्नल एंट्रीज in case of endorsement with practical example. So I hope you must have written this. Okay. अच्छा, अब एक और चीज मैं बताता हूं कि ये एंडोर्समेंट है ना, कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में हम कर सकते हैं. अब आपके लिए ये वर्ड नया है. ओके, मैं यहाँ पर लिखता हूँ. चलो मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखता हूँ. ऑब्जेक्टिव्स में मैं पूछने वाला हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैं पूछने वाला हूँ, तो नाउ यू शुड पे अटेंशन. निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. नाम बहुत भारी है. यू विल फील दैट कि सर ये क्या है. ओके, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. नाउ सबसे पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग. लीगल लैंग्वेज इसकी बहुत डिफिकल्ट है, बट सिंपल वर्ड्स में इट इज एनी इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट में ब्रैकेट में लिख सकता हूं लाइक चेक, कॉमा बीई यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज शॉर्ट फॉर्म. ओके, पीएन. व्हाट कुड बी द मीनिंग ऑफ पीएन? Promissory note. हाँ, promissory note. Yes. So it is a check or bills of exchange or promissory note which enables its holder to receive money. यानी देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन है जिसके पास बेरर चेक है. यू ऑल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेरर चेक. ओके, सो बेरर चेक का मतलब है कि इसके पैसे जिसके हाथ में वो होगा चेक उसको मिल सकते हैं. सो ऐसा कोई भी पेपर जिससे आप पैसे रिसीव कर सको, ओके, उसको हम कहते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक, ये सब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है जिसको हम क्या है ट्रांसफर कर सकते हैं. इसका मतलब है कि वो इंस्ट्रूमेंट के पीछे किसी और का नाम लिखकर हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं. सो ठीक है, चलिए हम अकाउंट्स में आ जाते हैं. काफी बार ऐसा भी होता है, लुक हियर, देखो काफी बार फनी सिचुएशन क्रिएट होती है. मिस्टर ए था डेटर. ओके, उसने साइन किया एंड मिस्टर बी को बिल दे दिया. अब मिस्टर बी का एक क्रेडिटर था मिस्टर सी. तो मिस्टर बी ने सी को ये एंडोर्स कर दिया. सो याद रखिए, मिस्टर सी विल बिकम एंडोर्सी. एंडोर्सी यानी जिसके फेवर में बिल ट्रांसफर किया गया है. एंड ड्रोवर विल बिकम एंडोर्सर. एंडोर्सर यानी जिसने ये एंडोर्समेंट की प्रोसेस की है, जो होल्डर ऑफ बिल था, जिसके पास बिल था एंड उसने ट्रांसफर किया है इन फेवर ऑफ सम अदर पर्सन. सो दिस इज द केस. अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि क्या मिस्टर सी किसी और को ये बिल ट्रांसफर कर सकता है, यस या नो? यस. ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक और पर्सन था मिस्टर डी. सो सी ने डी को बिल दे दिया.
इज दिस पॉसिबल? एंड जो डी है ना, वो डी ने ए से कुछ माल लिया हुआ था, तो डी ने फिर से ए को दे दिया। क्या ऐसा पॉसिबल है? यस या नो? यस, इट इज पॉसिबल। तो अब मेरा सवाल ये है कि जब ये बिल की डेट होगी, ड्यू डेट, उसमें कौन किसके पास पैसे मांगने के लिए जाएगा? देखो, सिचुएशन समझो, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने फिर से ए को दे दिया, तो अब कौन किसके पास पैसे मांगने जाएगा? सी बी से, बी ए से। बी ए से पैसे नहीं मांगेगा। देखो, पैसे मांगने के लिए कौन जाता है? जिसके पास बिल है। तो बिल किसके पास है? बी के पास। ए के पास। नो, डी के पास नहीं है। डी ने तो एंडोर्स कर दिया ए के। सर बी 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 के पास नहीं है। देखो, ए ने बिल बी को दिया, बी ने सी को दे दिया, एक के पास सी है। ने डी को दिया, डी ने ए को दे दिया, तो ए के पास बिल है। लावण्य का आंसर करेक्ट है। नो वन विल आस्क फॉर मनी। ये पूरी की पूरी साइकिल खत्म हो गई है। नाउ अब देखो, पे किसको करना है, ये तो सबको क्लियर है। हु इज गोइंग टू पे मनी? ए, A. बराबर। और यहां पर हु इज गोइंग टू रिसीव मनी? A. ए। देखो, क्योंकि घूम फिर के बिल उसी के पास आ गया, तो ए जो है वही इसमें होल्डर है, और ए को ही पैसे पे करने हैं। इसका मतलब है कि पेयर एंड रिसीवर इज वन इन द सेम पर्सन, सो ये बिल ऑटोमेटिकली कैंसल हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द सिचुएशन विच मे अराइज। सो जब बिल घूम फिर के एक्सेप्टर के पास ही आएगा, तो इसका मतलब है कि चेन इज कंप्लीट। सबको क्या है कि ये बिजनेस में दिस इज समथिंग विच यू मस्ट हैव लर्नड इन 10th क्लास, या फिर आप हायर क्लासेस में भी सीखोगे। इट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन ऑफ मनी। मनी कीप्स रोटेटिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। Okay, so now let's solve one question about endorsement. And which there are few persons. Look here. We have one question about endorsement. I also mentioned it's like question number 18. ठीक है. So let us solve one easy question. Question number 9. So everyone please pay attention. A owed B rupees 8,000. Be careful. इसमें कौन डेटर है कौन क्रेडिटर है वो डिसाइड करना डिफिकल्ट है। सो ए ओड बी, इसका मतलब ये है कि ए इज डेटर। ए ओड बी यानी ए डेटर है बी का 8,000 रुपीज के लिए। ही गेव अ बिल for the same on 1st August 2018, payable after 4 months at the Bank of India, Chandni Chowk, Delhi. अब कहां पर दिया, that's not important. And immediately after receiving the bill, B endorsed it to C. देखो, यहां से भी पता चल गया कि कौन है क्रेडिटर। क्रेडिटर इज बी, बिकॉज क्रेडिटर ने बिल किसी और के नाम किया है, क्रेडिटर के पास बिल है, सो बी इज एक्चुअली क्रेडिटर। There is no transaction of purchase or sell. And on 1st September, C discounted the bill at 12% per annum. The bill is met on the due date. Past journal entries in the books of A, B, and C. So now we will have to prepare the format. Now we need 3 parts for journal entries. Very few entries will be there. So prepare the format. I will write here journal of
we will follow our format. पहले हम creditor लिखते थे. So I will write journal of B. Who is creditor? Then I have journal of A. A is debtor. And then I have journal of C. C is endorsed C. So देखिए, first sentence was A owed B rupees 8,000. There is no purchase, no sale. तो इसकी कोई भी एंट्री हम पास नहीं करेंगे. Past transaction must be there. Okay, so we don't know what was the transaction, so no need to pass any entry when something is payable. Why it is payable, whether it is due to purchase or sale, it is not given. He gave a bill for the same on 1st August 18. So on 1st August 18 B को एक बिल मिला है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू A का अकाउंट. And in this situation A will pass the entry. वो डेबिट किसको कर देगा? क्रेडिटर को. B का अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल. एंडोर सी अभी तक पिक्चर में नहीं है. So I hope this entry is absolutely clear to everyone. ये बेसिक एंट्री है. On 1st August 2018. Now let's move on to the next transaction. What was done? बिल के बाद क्या हुआ है? Immediately after receiving the bill, B endorsed it to C in payment of his debt. B ने C को endorse कर दिया है on the same date. तो आप सबको ये journal entry में ध्यान देना है, which is the entry for endorsement. Logically सोचो क्या entry होनी चाहिए? C to BR. A to BR. Yes, perfect. Bills receivable is going out. तो इतना तो absolutely clear है कि bills receivable चला गया है from the hands of creditor. Debit the receiver. This is the rule of personal account. Okay. So C का account हम डेबिट कर देंगे. क्रेडिटर डेबिट कर देगा एंड सी का अकाउंट, क्योंकि ही इज अ रिसीवर. ओके, 8,000. Now, whether any entry will be passed by debtor? No, sir. No. No, sir. What is the reason? It is the matter between B and C. Creditor and endorse का मामला है. Debtor इसमें involved नहीं है. Now, look from the point of view of endorse. C को क्या मिल रहा है? कौन सा एसेट आ रहा है उसके पास? Bills receivable. Yes, so bills receivable account debit. Credit the giver. Who is the giver of this bill? B. Yes, B. देखो, गिवर यानी अल्टीमेटली बिल साइन ए ने किया था, बट सी के हाथ में ये बिल तो क्रेडिटर ने दिया था, बी ने दिया था. सो बी. और आप देख सकते हो कि बी ने सी को डेबिट कर दिया, सी ने बी को क्रेडिट कर दिया. सो प्रॉपरली अकाउंटिंग हो गई है. सो नाउ on 1st September, C discounted the bill at 12% per annum. So, on 1st of September 2018, when bill is discounted, what entry will be passed? Cash account debit. Then what? Discounting charges account debit. Credit will go to which account? Bills receivable account.
Okay, now we need to calculate this discount. So discount के लिए I told you one thing, bill का amount into rate upon 100. What is the rate of interest? 12% into months upon 12. अब यहां पर आपको ध्यान देना है, this calculation of months is important. पहले सोचो बिल 4 months का था, बराबर, बट डिस्काउंटिंग करवाया गया है ऑन 1 सितंबर को. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. 4 महीने का बिल था, आई हैव रिटन द डेट. आप 1 महीना लेट डिस्काउंटिंग करा रहे हो, सो 3 महीना होगा. कोई मुझे बताएगा ये 3 months कैसे आया? अगेन देखो, 1 अगस्त को बिल बना था, बिल वॉज फॉर 4 months, लेकिन आपने ये जो एंडोर्समेंट किया है इट इज आफ्टर 1 month. 1 सितंबर को आपने बिल डिस्काउंट करवाया है, यानी बैंक में 1 महीना लेट गए. ओके, सो इट मींस दैट 4 महीने का बिल था, अब 3 months ही बाकी है. सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. या एक और चीज मैं इसमें बता सकता हूं, अगर डेट वाइज जाना है तो यस, ड्यू डेट माइनस डिस्काउंटिंग डेट. तो अगर हम बैंक में लेट जाते हैं तो उतना ही पीरियड कम हो जाएगा फॉर कैलकुलेशन. सो यहां पर मैं लिखता हूं 4 months बिल का डेट माइनस 1 month. और ये 1 month माइनस इसलिए हुआ है बिकॉज आफ्टर 1 month हमने बिल डिस्काउंटिंग करवाया है. सो अब टाइम पीरियड कम हो जाएगा. ओके, सो ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो. 0 and 0 will get cancelled. सो कितना आएगा? 240. बिल वॉज ऑफ 8,000. सो बैलेंसिंग फिगर विल बी इन कैश अकाउंट. कितना होगा? 760. 760. Okay, and now let's move on to the next transaction. But यहाँ पर no entry will be passed by these 2 persons क्योंकि it is a matter between bank and C. Now only 1 minute is left. If you have not written, take the screenshot. We will finish this question. The bill is met on due date. Due date पे bill पे हो चुका है, तो please note due date में बैंक जाएगा डेटर के पास. सो डेटर एंट्री पास करेगा बिल्स पेबल टू कैश, वो पे कर देगा 8,000 एंड नो एंट्री विल बी पास्ड बाय बी और सी क्योंकि ट्रांजेक्शन है बिटवीन डेटर ए एंड बैंक. सो बहुत ही इजी कंसेप्ट है. So mark this question as important. Endorsement is very easy and it's actually logical. So I hope you are able to understand this question as well. So we'll continue tomorrow. Okay, one question I'm giving you as a homework, which is question